Back students to this grammar lecture from your ACE Grammar Book Standard 4th. Now I Shama Khan is going to take your grammar lecture. Now this is the third part of the recorded video of chapter number 24 Understanding Words. हमने फर्स्ट पार्ट में सीखा था about homophones. In the second part we study about synonyms. So this earlier videos keep on watching on regular basis. This is the part of the same chapter. तो आगे के वीडियो आप देखोगे then only you can complete your work and it will be very useful to you in your grammar. So all the videos watch regularly. It will be very beneficial to you. Now today we are going to do the third part of the recorded video of chapter number 24 Understanding Words. इसमें हम क्या सीखने जा रहे हैं about antonyms. तो antonyms that you have studied from your lower classes. मगर lower classes में हम इसे क्या कहते थे opposite. तो antonyms are the words that mean the opposite of each other. जो word है उसका बिल्कुल विपरीत, उसका बिल्कुल अलग. तो antonyms को हम opposite वो आप फर्स्ट स्टैंडर्ड से भी सीखते आ रहे हैं तो आपको ये पता ही होगा. सो इजी चैप्टर. सो वॉच द वीडियो टिल द एंड. नाउ सो एंटोनिम्स आर द वर्ड दैट मीन अपोजिट ऑफ ईच अदर. नाउ हियर एग्जाम्पल के साथ अच्छे से समझ लेते हैं. द वर्ड इज एबो. एबो यानी ऊपर. तो व्हाट विल बी द अपोजिट एंटोनिम? बिलो. एंट्रेंस अंदर आना, तो बाहर जाने को क्या होगा? एग्जिट. पुश यानी अंदर की ओर खींचना, धक्का मारना, तो पुल मीन्स खींचना. नेक्स्ट वन इज अर्ली, बहुत जल्दी, तो उसका अपोजिट क्या होगा? लेट. देन फास्ट, सो एंटोनिम स्लो. सो ये तो आप फेमिलियर ही है. Easily we can do the textual exercise जो आपके इस ग्रामर में पेज नंबर 9 के ऊपर दिया गया है. So let's begin. And students are very well aware कि they have to use the pencil for doing all the exercise. तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन. Rewrite these sentences with antonyms of the underlined words. तो जो अंडरलाइन वर्ड्स दिए हैं उसके हमको एंटोनिम्स लिखने हैं. फर्स्ट वन, मोहित इज़ प्रेजेंट इन क्लास टुडे. तो प्रेजेंट है, उसका एंटोनिम क्या होगा? एब्सेंट. मोहित इज़ एब्सेंट इन क्लास टुडे. तो ये एब्सेंट के नीचे आपको अंडरलाइन करना है. मदर वॉज अवेक व्हेन वी वेंट होम. तो अवेक यानी जागे हुए थे, तो उसका एंटोनिम क्या होगा? मदर वॉज एस्लीप व्हेन वी वेंट होम. एस्लीप वर्ड यू हैव टू अंडरलाइन. शी ऑलवेज लॉक्स द डोर बिफोर शी लीव्स. वेरी गुड हैबिट कि जब भी हम बाहर जाए तो दरवाज़ा बंद करके जाना चाहिए. सो ऑलवेज का क्या होगा एंटोनिम? नेवर. शी नेवर लॉक्स द डोर बिफोर शी लीव्स. ये नहीं करना चाहिए. वी शुड लॉक द डोर. वी हैव अ बिग अम्ब्रेला विथ अस. ये तो कितना इजी है. वेरी गुड. इसमें आएगा वी हैव अ स्मॉल अम्ब्रेला विथ अस. ये तो मेरे कहने से पहले ही बच्चों ने आंसर दे दिया. एक्सीलेंट. नाउ वी विल डू पेज नंबर 99. Let's begin. The room looks very bright from outside. कि बाहर से देखने में रूम बहुत ब्राइट चमकदार लग रहा है. तो उसका एंटोनिम क्या होगा? The room looks very dull from outside. बाहर से देखने में एकदम डल, फीका फीका लग रहा है. This word dull you have to underline. He drew a crooked line. क्रुक्ड यानी वाकू चुकी सीधी लाइन नहीं है जैसे तैसे.
The line is not proper. So what will be the correct answer? Antonym. He drew a straight line. STRAIGHT, एकदम सीधी लाइन. He drew a straight line. The weather is quite cool today. Cool एकदम ठंडा मौसम सबको पसंद है. तो cool is the word. We have to find the antonym of cool. The weather is quite warm today. WARM. The weather is quite warm today. Underline the antonym word. The pond is deep. Deep यानी बहुत गहरा. तो ज़्यादा गहरा नहीं होगा तो उसका क्या बोलते हैं? Shallow. The pond is very shallow. SHALLOW. The pond is very shallow. 9th one. We went to his house early in the morning. Early antonym. Excellent students. Correct. तो आएगा We went to his house late in the morning. देर से गए थे. Late word you have to underline. The monkey was sitting inside the house. ये भी बहुत easy है. Very good. Correct answer. It is outside. The monkey was sitting outside the house. Outside antonym word आपको underline करना है. Inside का antonym outside. Let's do the next exercise. F number. Make 5 pair of antonym with these words. तो यहाँ पे जो word दिया है उसका हमें pair बनाना है. Which are the words? Arrive, bright, approve, dry, lost, depart यानी चले जाना, bitter कड़वा, disapprove यानी कोई चीज़ का ना बोलना, dim एकदम धीमा होना, wet गीला, found मिलना, sweet मीठा. So all these words we will make the antonym. Arrive यानी पहुँचना. तो what will be the antonym? Depart यानी चले जाना. So ये स्पेशली ट्रेन के लिए यूज़ होता है. The train has arrived. The train has departed. So arrive antonym depart. Second one bright. BRIGHT एकदम चमकदार. और जिसकी चमक उतनी अच्छी नहीं हो तो उसको क्या कहते हैं? डिम. ऐसे कहते हैं ना हमें अच्छा ऐसे कम दिखाई दे रहा है, उतना ब्राइट नहीं है. दैट इज़ डिम. DIM. तो ब्राइट का अपोजिट डिम. अप्रूव यानी कोई भी चीज़ को हाँ कह देना कि यस इट इज़ ओके, और ना कहना कि नो दिस थिंग इज़ नॉट प्रॉपर. दैट इज़ डिसअप्रूव. कि इसके लिए सहमत न होना कि दैट इज़ नॉट प्रॉपर. डिसअप्रूव. फोर्थ वन ड्राई. ड्राई यानी एकदम सूखा. तो उसका एंटोनिम क्या होगा? वेट गीला. फिफ्थ वन लॉस्ट. खो देना. तो मिल जाए तो क्या होगा? फाउंड. बिटर मीन्स कड़वा. तो उसका एंटोनिम स्वीट. सो दिस आर द एंटोनिम वर्ड जिसके हमने पेयर बनाए. So this topic is very easy. This also with the help of dictionary. या आप जितने नए हो उतने नए वर्ड्स के आप एंटोनिम्स फाइंड करके अपने रफ नोटबुक में लिख सकते हैं. It will be helpful in your studies in future. तो जितना बन सके उतना ऐसे पेयर रफ नोटबुक में लिखते जाइए. It will be very beneficial to you. And complete the work in proper and nice handwriting in your textbook. Okay, thank you students.